بذار از اول دعا با این روایت شروع کنم. حالا که اسم کربلا اومد، پیغمبر شروع کرد روزه بخونه. دخترم پسر تو اینطوری میگوشد. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم والائمة الميامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قائم ٹی وی کے پروگرام میں محمد علی سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ دعائے عرفہ ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے سن 58 ہجری میں آپ کے لبھائے مبارک سے صادر ہوئی۔ اور وہ دعا جو ہے ظاہراً ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور اس سے متاثر ہوتا ہے دل اور آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن اگر ان آنسوؤں کے اندر اگر ہم عقل اور غور و فکر کے چراغوں کو بھی روشن رکھیں تو ہمارے اوپر علم کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے 58 ہجری میں جن علوم کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ اور دنیا کے جو سائنسدان ہیں یا مغربی ممالک ہیں جو سائنس میں ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے تجربے اور کوششوں سے، بار بار کے تجربات سے اور نئے نئے آلات کی ایجاد کے بعد ان علوم کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ تو ان میں سے امام حسین علیہ السلام نے جو جملے کہے ہیں، ہر عضو کے ساتھ ایک لاحقہ لگایا، اور وہ لاحقہ جو ہے اسی کے اندر وہ کوڈ موجود ہے جس کو ڈی کوڈ کرنے سے ہم ان علوم تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے آنکھ نہیں کہا، بلکہ آنکھ اور نور کے پیوستہ راستے۔ پیوستہ سے مراد یہ ہے کہ بلا فصل، یعنی ان کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے، یعنی جڑے ہوئے ہیں وہ سارے۔ تو وہ اب میں آپ کو اس کی وضاحت تھوڑی سی کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم آنکھ جو ہے ہماری ہے کیا۔ ایک آنکھ ہماری چھوٹی سی گیند نظر آتی ہے، اگر ہم آئینے میں دیکھیں تو ایک گیند نظر آتی ہے جس کے سامنے کی طرف ایک تھوڑا سا سیاہ رنگ کر دیا گیا ہے۔ دیکھنے کے عمل کا آغاز اسی جگہ سے ہوتا ہے جس کو آنکھ کی پتلی کہا جاتا ہے۔ قرنیہ جو ہے ہماری روشنی کی لہروں کو مخصوص زاویوں سے موڑ کر یا ترچھا کر کے انہیں آنکھ کی پتلی تک پہنچاتا ہے۔ آنکھ کی پتلی یہ خودکار نظام کے تحت چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ تیز دھوپ میں یہ تقریباً بند ہو جاتی ہے اور رات کی تاریکی میں آخری درجے تک کھل جاتی ہے۔ آنکھ کے عجائبات کا آغاز آنکھ کے عدسے یعنی لینس سے ہوتا ہے۔ یہ عدسہ وٹامن کی ایک بیضوی گولی کے برابر ہے اور ایک سیال مادے سے بھرا رہتا ہے۔ اس کے چاروں طرف بہت ننھے منھے لیکن ناقابل تصور حد تک مضبوط پٹھے یعنی مسلس ہیں۔ جب یہ پٹھے سکڑتے ہیں تو آپ قریب کی چیزوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور جب یہ پٹھے پھیلتے ہیں تو آپ دور دراز کی چیزیں آسانی سے آپ کو نظر آنے لگتی ہیں۔ عدسے کے سامنے والا حصہ پانی جیسے شفاف مادے سے بھرا رہتا ہے۔ یہ مادہ آنکھ کو پھلائے رہتا ہے۔ عدسے کے پچھلے حصے میں انڈے کی سفیدی جیسا ایک سیال مادہ بھرا رہتا ہے۔ یہ دونوں سیال مادے یکساں طور پر شفاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات ہیں، آپ اس میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آنکھ کا جو پردہ ہے ریٹینا، یہ پیاز کے باریک چھلکے جیسا ہوتا ہے اور آنکھ کے عقبی حصے کے 2/3 علاقے پر پھیلا ہوتا ہے۔ اس کا سائز 1 اسکوائر انچ سے بھی کم ہے، اور اس پر روشنی کی لہروں کو محسوس کرنے والے، تو حیران کن بات یہ ہے کہ جو 1 اسکوائر انچ سے بھی کم ایک ہماری آنکھ کا پردہ ہے، اس کے اوپر روشنی کو محسوس کرنے والے 13 کروڑ 70 لاکھ سیل یعنی خلیے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 13 کروڑ خلیے جو ہیں ان کی شکل جو ہے راڈ کی طرح سے ہے، اور یہ خلیے سفید و سیاہ رنگوں سے منعکس ہونے والی روشنی کو دیکھنے کے لیے مخصوص ہیں۔ 70 لاکھ خلیے کون کی شکل کے ہوتے ہیں، اور یہ 3 بنیادی رنگوں اور ان کے امتزاج سے بننے والے لاکھوں کروڑوں رنگوں سے منعکس ہونے والی روشنی کو وصول کرنے کا کام کرتے ہیں۔ دونوں آنکھوں کے ان خلیوں کی مجموعی تعداد کم و بیش 26 کروڑ 14 لاکھ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ
रंगों को नहीं देख पाते, ऐसे अफराद को कलर ब्लाइंड कहा जाता है। इसका सबब यह है कि ऐसे अफराद की आँख में 3 बुनियादी रंगों को महसूस करने वाले खलिए यानी कोन वाली की शक्ल वाले खलिए नहीं होते। रोशनी की लहरें जब हमारी आँख तक पहुँचती हैं तो आँख के अंदर एक बरक़ी कीमियाई अमल शुरू हो जाता है। इस अमल से एक हल्की सी यानी वोल्ट के करोड़वें हिस्से के बराबर एक बरक़ी रौ पैदा होती है। ये बरक़ी रौ 300 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से आँख और दिमाग के दरमियान मौजूद ऑप्टिक नर्व में दाखिल होती है। यही वो ऑप्टिक नर्व है जिसकी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया, नूर के पेवस्ता रास्ते। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये भी और चीज़ों से जुड़ी हुई है। और आपको याद दिला दूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की भी एक कौल है कि यह इंसान भी ताज्जुब के लायक है कि चर्बी से देखता है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये पूरी चर्बी की बनी हुई होती है यानी फ़ैट की बनी होती है। अच्छा, ये ऑप्टिक नर्व दिमाग के एक हिस्से तक इस सिग्नल्स को पहुंचाती है और दिमाग यानी आँख जो है वो सिर्फ उसका काम किसी चीज़ को पहचानना नहीं है, बल्कि आँख जो है वो सिर्फ उस चीज़ की तस्वीर दिमाग को रवाना कर देती है। और दिमाग के पास वो तमाम सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसके ज़रिए दिमाग ये फ़ैसला करता है कि ये चीज़ नज़र आने वाली चीज़ क्या है। यानी शहद की मक्खी है या तितली है। अगर शहद की मक्खी है तो इंसान जो उसको देख रहा है वो उससे दूर हटने की कोशिश करेगा, अपने को बचाने की कोशिश करेगा। और अगर तितली है तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से जैसी भी चीज़ होती है उसके मुताबिक दिमाग फ़ैसला करता है कि यानी ये क्या चीज़ है। और हैरान कुन बात ये भी है कि आपके हमारे जो 5 आसाब हैं यानी कान है, आँखें हैं, नाक है, सूंघने की ताकत है, चखने की ताकत है, ये जल्द है हमारी, तो ये सारी चीज़ें, आँखें हैं हमारी, तो सारी चीज़ें जो 5 आसाब हैं इनके दरमियान बहुत कम फासला है, चंद इंचों का फासला है। लेकिन आँख को ये नहीं मालूम होता कि कान ने क्या सुना, और कान को ये मालूम नहीं हो पाता कि आँख ने क्या देखा। इसी तरीके से ज़बान जो चखती है वो ज़बान ही को मालूम होता है कि ज़बान ने क्या चखा। ये कान को नहीं मालूम हो सकता कि इसका जायका कैसा है। तो ये निज़ाम खुदावंद ताला के वजूद पर एक ऐसी मुस्तहकम दलील है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये जो 5 हवास हैं एक जगह हैं, करीब करीब हैं, लेकिन ये सारे के सारे ख़ुद कुछ नहीं करते, ये मालूमात को दिमाग तक पहुंचाते हैं। दिमाग इनके बारे में बताता है कि ये क्या चीज़ है। अब जो बात हुई कि पेवस्ता रास्ते, यानी पेवस्ता का मतलब ये है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए रास्ते हैं, तो उसके बारे में अर्ज़ ये है कि ये पेवस्ता रास्ते क्या हैं। तो ये एक तो उसमें पहला तो है कर्निया, दूसरा है आँख की पुतली, तीसरा है असाइन लेंस, और चौथा है आँख का पर्दा, और सबसे बढ़कर ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व ना हो या इसमें कोई नक्स पैदा हो जाए तो हमें कुछ नज़र नहीं आ सकता। आँखों से इंसान महरूम भी हो सकता है बीनाई से। अच्छा, जब ये ऑप्टिक नर्व दिमाग के अंदर ये इत्तलात पहुंचाती है तो दिमाग के अक़बी हिस्से में मौजूद मरकज़ बिसारत जो है वो एक्टिव हो जाता है। इस रग में यानी ऑप्टिक नर्व में 10 लाख से ज़्यादा रेशे पाए जाते हैं। रेशे का मतलब फ़ाइबर। जैसे आप केबल के फ़ाइबर देखते हैं तो केबल के अंदर बहुत बारीक 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 तार होते हैं, तो उससे लाखों करोड़ों गुना छोटे फ़ाइबर आँखों में पाए जाते हैं, जो बैक वक्त लाखों रंगों और अशिया से मुनक्स होने वाली रोशनी की लहरों को बर्क़ रफ्तारी से दिमाग तक पहुँचाते हैं। और ये गोया 5 रास्ते हुए, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे, और ये 5 रास्ते एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी बिला फसल हैं, यानी एक दूसरे से फासले पे वाक़ नहीं है। अच्छा, आँख की जो रगें हैं आँख को कंट्रोल करने वाली, वो भी चर्बी से बनी हुई हैं, और वो हमारे दिमाग, ये खोपड़ी का जो अगला हिस्सा है, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ से निकल के हमारे इन 5 जो हमारे आसाब हैं इनको कंट्रोल करती हैं। आँख को हरकत यानी कंट्रोल करने वाली, कि आँख इधर देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, कहाँ देखे,
तो ये जो आँख हमारी हर वक्त हरकत करती रहती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है। और वो जो आसाबी रगें हैं, उनमें से पहली रग जो है उसका नाम है ओकुलियोमोटर नर्व, दूसरी है ट्रोकलर नर्व, तीसरी है एबडूसन नर्व। इन आसाबी रगों में से किसी एक में भी अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो आँखों की हरकत या बीनाई में मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे भैंगापन या हर चीज़ का दो दो नज़र आना। तो ये 12 कैर्नियल नर्व्स हैं जो हमारी खोपड़ी के आगे वाले हिस्से से, जहाँ सिजदे का मकाम है, उससे आगे की तरफ निकलती हैं। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ये सब जो बताया कि आँख और उसके अंदर नूर के पेवस्ता रास्ते, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। यानी कुरान की आयत जो हैं मौजू, आप आइम्मा की जो दुआएं हैं, अक़वाल जो हैं, वो आपको एक मौजू की तरफ मुतवज्जे करते हैं। वो और उसकी हमारा होमवर्क ये है कि हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। लेकिन अलमिया ये है कि न हम कुरान मजीद की आयत के अंदर जो उलूम है उन पर गौर व फिक्र करते हैं, ना उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और ना हम दुआएं पढ़ते हैं, बहुत रक़्क़त के साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उलूम छुपे हुए हैं उनकी तरफ से हम बेखबर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इससे आगे की तरफ बात करेंगे। بذار از اول دعا با این روایت شروع کنم حالا که اسم کربلا